Welcome everyone. Myself, Professor KV Kushare, lecturer in Mechanical Engineering Department from MEP's Rajasri Shahu Maharaj Polytechnic, Nasik. Okay, we discuss on the uh, first unit, introduction of management and concept, his concept. Okay, last lecture we complete the management topics of practical responsibility, ability, authority. Okay, next today's topic is production management. Okay, last lecture we discussed the what is the main area of the management. We discussed production, finance, human source. Okay, that is the given in chart. Okay, we discuss also on them. Okay, we deeply discuss on production management. Okay, then production management is the management of production process, the convert input into goods and service. The input are main material, equipment, technical knowledge, etc. Okay, there's some given example which thing are in the production, like your main, like your employees, materials, equipment, technical knowledge, etc. They are in the production management. It is also known as manufacturing management or operational management. The main objective of production management is to produce a good and service from right quality and quantity at the right time and right the manufacturing cost. मीन्स मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि सपोज़ कहीं भी एनी एनी इंडस्ट्री होगा, उस इंडस्ट्री में उन्होंने बताया है कि कौन कौन से मटेरियल ज़रूरी है. मटेरियल होगा, इक्विपमेंट, टेक्निकल नॉलेज. ओके, बट दिस सम गिवन ए सेंटेंस that to produce a good and service of right quality and quantity at the right time and right manufacturing cost. मीन्स कोई भी इंडस्ट्री होगी कि उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसने नया यूनिट लगाया, न्यू प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया, बट उसमें कुछ थिंग इम्पोर्टेंट होते हैं कि उसकी गुड सर्विस होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम बजट में चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए. उस टाइम उसकी मार्केटिंग ज़्यादा है, मुझे लोगों को उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए एंड वो भी राइट टाइम में होना चाहिए. सपोज अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कि नया सिनेमा लगने वाला है कि उनका टाइम रहता है. सपोज़ हमारा दिवाली का पीरियड रहता है, उस टाइम पे सिनेमा कोई रिलीज़ हो गया तो उस टाइम पे वो ज़्यादा चलता ही है, ज़्यादा बुकिंग होती है, क्योंकि उस टाइम में सब फैमिली लोग आए होते हैं. और क्या होता है कि उस टाइम में हॉलीडे ज़्यादा होते हैं, इसलिए हॉलीडे ज़्यादा होने के कारण उसका मार्केट भी बढ़ जाता है. इसलिए कुछ डायरेक्टर होते हैं जो पिक्चर भी रिलीज़ उसी टाइम पर करते हैं. बट मीन्स क्या, क्वांटिटी एट द राइट टाइम एंड राइट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉस्ट. मीन्स टाइमिंग भी वो होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ओके, सर्विस भी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उसकी कम होनी चाहिए. दैट इज़ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट. दिस डिपार्टमेंट इज जनरली put under the production manager and he is the responsible for the production relative activity, that is your production. Okay, some given points related to production management. First is of purchasing. This is related to the person of various material required by the organization. Purchasing involved procuring right quantity of material of the right quality at the right time and at the right price from the right supplier. Okay, we discuss purchasing means quality, also quantity, and also production in right time and right way. And that is the also price is the minimum for the right supply. The next material management. This involved the storing of the material and issue of material various department. Okay. Then research and development. It deals with improving the exciting product and process and developing a new product and process. इसमें क्या बताया है रिसर्च और डेवलपमेंट में कि हम जो कंपनी में R&D डिपार्टमेंट होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है, हम उसके वो प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग होता रहता है, पर उसमें हम नया क्या कर सकते हैं. सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं कि हम मोबाइल है, मोबाइल में से मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग चालू है. सपोज़ अभी आपने एग्जांपल लिया Realme 7 का एग्जांपल लेते थे. ओके, उसका 6 GB और 64 रोम का और 6 GB रैम का वो मोबाइल है. पर उसका जो R&D डिपार्टमेंट है, उसको जो स्पेशलाइजेशन दिया है, वो स्पेसिफिकेशन दिया है, उसके एडवांस स्पेसिफिकेशन कैसे होने चाहिए और उसके ऊपर वो रिसर्च करते रहते हैं. मीन्स अगेन जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो ज़्यादा कैसा आ रहेगा, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी,
उसके बाद उसका जो 6 GB है उसको 8 GB कैसे करेंगे, उसकी प्राइस भी कम चाहिए। देन उसका रोम है तो वो 128 GB तक लेके जाना है। तो R&D डिपार्टमेंट उसके ऊपर रिसर्च करता है और रिसर्च कंप्लीट होने के बाद नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है और उसमें वैरायटी लाता है। दैट इज़ योर R&D डिपार्टमेंट। ओके। द मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग, organizing, controlling, implementation of marketing program and policy of distribute the organization product to buyer and to generate any accelerated profit. The diagram also shows the product, price, place, promotion. That is a marketing manager. Okay. मीन्स क्या होता है, जब प्रोडक्ट लेता है मोबाइल को, हमने एग्जांपल लिया तो मोबाइल होता है, वो प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो सेल्स करने के लिए बाहर निकलता है, उसकी एडवर्टाइज होती है, उसके ऊपर खर्चा किया जाता है। वो उसके बाद वो जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस डिसाइड होती है, उसको प्लेस दिए मिलता है, वहाँ पे वो ऑर्डर किया जाता है, बाद में वो उसका प्रमोशन, दैट इज़ वो साइकिल। ओके। बट वो क्या बोला है, पॉलिसी टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट टू द बायर टू जनरेट एक्सेप्टेबल प्रॉफिट। वो लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं और उस मोबाइल को सेल करना स्टार्ट करते हैं। पर सेल करते समय जो भी बड़ी कंपनी होगी, बड़ा डीलर होगा, उसको ही सप्लाई करते हैं और उसके साथ भी प्रॉफिट, एक्सेप्टेबल प्रॉफिट रखते हैं। दैट इज़ वो मार्केटिंग मैनेजमेंट। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आर क्रिएशन ऑफ डिमांड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केट sales, generation of profit, creation of goodwill and public image. मीन्स मेजर ऑब्जेक्टिव लाइक यूर क्रिएशन ऑफ डिमांड, हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। जो 6 GB होगा उसका 8 GB, जो कस्टमर होगा वो 8 GB आना चाहिए। ओके, दैट इज़ अ क्रिएशन ऑफ डिमांड। दैन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो भी उसको प्राइस सपोज 10,000 12,000 का मोबाइल होगा, उसमें उसको ज़्यादा मेगापिक्सल स्टोरेज वाला और बेटर क्वालिटी और बैटरी बैकअप वाला मोबाइल मिल जाएगा, तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। और मार्केट सेल, उसके साथ कंपनी को वो जो उसने खर्चा किया है उसके बाद कंपनी को भी कुछ शेयर्स का प्रॉफिट होना चाहिए ना, जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। एंड क्रिएशन ऑफ गुड विल एंड पब्लिक इमेज, देन वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, बैटरी बैकअप और सब अच्छा रहेगा तो उसका मार्केट ऑल्सो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। दैट इज़ द योर मार्केट मैनेजमेंट। द सब एक्टिविटी आर एडवर्टाइजिंग, मीन्स मार्केटिंग करते समय क्या ज़रूरत रहता है कि लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि नया प्रोडक्ट आया है और वो ऐसा ऐसा है, इसलिए क्या करना पड़ता है। वी सब एक्टिविटीज़ एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड बायर्स, their marketing research. It is related to the systematic collection and analysis of data relating to the marketing of goods and service. Then sales management. It's involved management effort direct towards movement of product and service the product to the customer. That is the for sales management. Okay. Then another one is a financial management. Financial management is a planning, organizing, directing, controlling the financial activity like the procurement and utilization of fund of the enterprises. The objective are, first point is to ensure the regular and advocate the supply of fund to the organization, to ensure the returns to the shareholder, to ensure the optimization fund utilization, to ensure the safety of investment, to plan a sound capital structure. द मीन्स दे सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स जो भी प्रोडक्शन होने वाला है, जो कंपनी उसकी, उनका जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, सपोज नया मोबाइल लॉन्च करने वाले हैं, उनको कितना प्राइस लगेगा, जो वो मोबाइल होगा उसकी प्राइस कितनी रहनी चाहिए, उसका कॉस्ट कितनी चाहिए, सब जो कस्टमर होगा उसके लिए कॉस्ट कितनी रखनी चाहिए, और जो भी हम कंपनी का खर्चा हुआ है उससे वो मोबाइल सेल्स करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, और जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो रिकवर कैसे होना चाहिए। ऑल द फैक्टर आर डिपेंडिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फंक्शन आर द फाइनेंशियल प्लानिंग, forecasting, determination of capital composition, fund investment, maintaining proper liquidity, disposal of surplus, and financial control. Okay, we today's lecture we discuss the management factor like your production management, then another is the marketing, and third one is your financial manager. Okay, thank you so much for listening my lecture.